यस बेटे, दिस वाज द क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन था ना हमारा. इन क्लास 11 देयर आर 120 students, out of which 70 are boys. I hope this was the question. So statement you have already written. Now see, directly don't have to draw the final table. ठीक है, फेयर टेबल जो है अपने फेयर वर्क में, यू डोंट हैव टू स्टार्ट विद फेयर वर्क इन द बिगनिंग. फर्स्टली ऑलवेज ट्राई to make a table in the rough work, because in the calculation part, in the drawing part, you will come to know ki what is to be done and what is not to be done. So ये नहीं कि directly you take scale and pencil and you start drawing after seeing this answer. ऐसे नहीं आपने करना है. Firstly आप अपने accordingly rough work में फ्री हैंड से, वहाँ पे आप जरूरी नहीं कि यू मेक यूज ऑफ स्केल, रफली आप अपना बना के देखो. नाउ सी, इन दिस क्वेश्चन टू थिंग्स हैव बीन गिवन मेनली. एक दिया हुआ है हमें स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स में भी फर्दर हु आर द स्टूडेंट्स, देयर आर सम बॉयज एंड सम गर्ल्स. सो दीज आर द लिविंग बींग्स. People are to be compared. This is the most important thing. And second thing is given about this information about the stream, science, commerce, arts stream. ठीक है, तो now we have to see, as you can see in this table, यहाँ देखो ये कॉलम में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया मेन हमारा करेक्टरिस्टिक, और आगे इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बॉयज एंड गर्ल्स. तो हियर इन द कॉलम फॉर्म वी हैव टू राइट बॉय. ठीक है, ये एस आप चाहे छोड़ भी सकते हो, सिंगुलर फॉर्म में यू कैन राइट बॉय, हियर गर्ल. ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है. इनका कंपैरिजन करना है हमने कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन साइंस स्ट्रीम, हाउ मेनी आर देयर इन कॉमर्स एंड आर्ट्स. ठीक, तो दैट इज व्हाई बॉय एंड गर्ल शुड बी रिटन इन कॉलम फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म, एंड हियर इन द रोज साइड. ऐसे आपने, ऐसे जो हम लिख रहे हैं ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, हार्डली मैटर्स. तो यहाँ पर ये हमारी रोज हैं. ठीक, जो स्ट्रीम है, नाउ आई कैन टेल यू अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स. ये हो गया टेबल नंबर. You write in your copy table number 1, because we are doing this is our first question, so we should write table number 1. ठीक है, then secondly this whole of this information is related to students in different streams. ठीक है, तो here we can make this heading title, number of students in class 11. This can be our suitable title. Why we have given this title? Because whole of this information is related to students and their streams. So we can give the title. You please write down. It would be better if you write title in capital form, bold letters. If you write, then it looks beautiful and better also. Number of students in class 11. Okay. Now on the basis of sex and stream, this you can mention in the head note part also. Okay, na? Below this title, try to write title in the middle. ये नहीं कि एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट में यू आर राइटिंग, नो, अवॉइड दैट. राइट टाइटल इन द मिडल सो दैट टेबल शुड लुक नाइस ऑल्सो. देन below the title in the bracket towards this side you may write on the basis of their sex and stream. ठीक है, क्योंकि stream भी बता रहे हैं हम लोग, boy girl भी बता रहे हैं, so this can be written in the head note. Then अब now box is to be drawn, rectangular form, square नहीं, rectangular form. अब आपने पहले अपने रफ में करके देखना कि कैसे मेरा विजिबली, मतलब हाउ कैन आई प्रेजेंट इट इन ए बेटर वे. तो आप एक साइड इसकी यहाँ पर यू कैन डिवोट टू दिस स्ट्रीम, नेम ऑफ द स्ट्रीम. ठीक है, स्ट्रीम के नीचे वी कैन राइट, आप कोई भी ऊपर नीचे यू कैन राइट साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कैसे भी लिख लो, हार्डली मैटर्स. देन ऑन दिस साइड हियर वी विल राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यू कैन प्लीज राइट साइड बाय साइड. देन आई विल गिव यू वन क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ऑल्सो दैट यू विल डू ऑन योर ओन. Number of students. ठीक है, अब now number of students, since further they are divided into boys and girls, so we should, ये हो गया हमारा number of students. ये this is our main caption, है ना, main column है हमारा, main caption है. Now we have divided into sub captions. इसके two equal parts करने हैं, ये वाले part के two equal parts. Center में you have to draw the line. One side you will write boy, one side you will write girl. ठीक है, क्योंकि we have divided this number of students column into two parts, so equal two parts are to be made. Then on extreme right we will write total. ठीक है, try to mention this column total on this side, extreme right, as well as below these rows also, because horizontally and vertically our total value that should be equal. अब वो कैसे आएगी अभी हम चेक कर लेते हैं. Now let us start. Now let us read the statement. In class 11 there are 120 students. ठीक है, this is given to us. That means our total is, total from this side, चाहे vertically देख ले,
और वी कैन सी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल साइड टोटल पहले यहाँ पर आपने लिखना है 120, ठीक है, यहाँ लिखो आप बिल्कुल कॉर्नर में 120, देन आउट ऑफ विच 70 आर बॉयज, ठीक। नाउ यू चेक द कॉलम बॉयज, ये बॉयज का कॉलम है, इस 120 में से आउट ऑफ दिस 120 70 बॉयज हैं, इसका मतलब ये बॉयज के कॉलम का टोटल, यहाँ पे वी शुड राइट 70, ठीक है जी। तो अगर ये 70 है, टोटल बच्चे जो है, टोटल स्टूडेंट्स देयर नंबर इज 120 और उसमें से आउट ऑफ देम 70 आर बॉयज, तो देन हाउ मेनी गर्ल्स विल बी लेफ्ट? वेरी सिंपल, वी शुड सब्ट्रैक्ट 70 फ्रॉम 120, टोटल में से एक पार्ट इज गिवन टू अस, उसको माइनस कर दे, वी आर गेटिंग 120 माइनस 70, वी विल गेट 50, तो हियर यू विल राइट 50, ठीक है, ठीक है जी। चलो नाउ लेट अस कम टू सेकंड लाइन, आउट ऑफ टोटल 70 बॉयज 30 बॉयज बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम। अब अपना इसका मतलब वी आर बीइंग टोल्ड अबाउट बॉयज ओनली, तो ये 70 बॉयज में से हाउ मेनी आर इन द साइंस स्ट्रीम? 30, ठीक। तो बॉयज के कॉलम में साइंस स्ट्रीम के सामने यू विल राइट 30 बिकॉज दिस इज गिवन टू अस इन द स्टेटमेंट। बॉयज कॉलम में लिखना है, हियर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स राइट नाउ, ओनली बॉयज की बात हो रही है। सो आउट ऑफ 70 30 बॉयज दे हैव साइंस, तो साइंस के सामने हियर वी विल राइट 30, देन व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, 25 आर स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम। अभी इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस सेंटेंस ये बात हमारी किसके बारे में चल रही है? स्टिल इट इज गोइंग अबाउट बॉयज, तो 30 बॉयज साइंस स्ट्रीम में एंड 25 बॉयज आर इन आर्ट्स स्ट्रीम। तो अब आर्ट्स स्ट्रीम कहाँ पर है? इट इज हेयर आर्ट्स स्ट्रीम, आर्ट्स के सामने बॉयज के कॉलम के नीचे 25, राइट, इतना हमें वी हैव बीन गिवन, ठीक। अब आपने क्या करना है, नाउ वी आर हैविंग द नॉलेज ऑफ टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ बॉयज वी नो। अब आउट ऑफ दीज 3 हमें 2 के बारे में दे हैव ऑलरेडी टोल्ड 30 एंड 25। अब आप ऐड करो 30 और 25 को ऐड करके, इफ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 70 यू विल कम टू नो कि हाउ मेनी विल बी लेफ्ट इन कॉमर्स स्ट्रीम, पता चल जाएगा ना। 3 में से 2 के बारे में हमें बताया हुआ है, तो 25 प्लस 30 ये हो गए 55, ठीक है। तो 70 में से इफ वी रिड्यूस 55 तो लेफ्ट इज 15, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15। So when we write this 15, तो then in that case now we have got all the values of this boys column, ये column हमारा complete हो गया, nothing is missing here, ठीक है। Now next line, there are 10 girls in science stream, तो let us see, आ जाएं गर्ल्स वाले कॉलम पे। नाउ हियर इन दिस कॉलम हाउ मेनी गर्ल्स साइंस में है? इन फ्रंट ऑफ साइंस गर्ल्स के कॉलम में हियर वी विल राइट 10, ठीक है, जो दिया हुआ है पहले वो फिल कर लो, 10 गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम एंड 35, अभी ये 35 गर्ल्स की ही बात हो रही है, 35 गर्ल्स इन कॉमर्स स्ट्रीम, तो कॉमर्स ये हो गया कॉमर्स, कॉमर्स के सामने गर्ल्स वाले कॉलम में वी विल राइट 35, ठीक है। अच्छा नाउ टोटल हमें ऑलरेडी वी हैव रिटन 50, हमें पहले ही पता है, तो 35 और 10 को प्लस कर दें, ये बन गया 45, तो हाउ विल वी कम टू नो कि हाउ मेनी गर्ल्स आर इन आर्ट्स, तो 50 माइनस ये ऊपर इन दोनों का टोटल 45 माइनस कर दें, तो रेस्ट इज 5, ठीक है ना। 3 में से 3 थिंग्स में से हमें 2 थिंग्स के बारे में वी आर गिवन इन्फॉर्मेशन, तो ये 10 भी बता दिया उन्होंने, 35 भी दे हैव टोल्ड, टोटल हो गया दोनों का 10 प्लस 35 45, देन वी शुड सब्ट्रैक्ट 45 फ्रॉम 50, तो वी विल बी लेफ्ट विद 5, ठीक। आफ्टर डूइंग दिस नाउ वी हैव टू क्रॉस चेक, और देख लो और तो नहीं है कोई लाइन, बस इतना ही है, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक ऑल द टोटल्स, नाउ प्लीज ऐड ऑल द वैल्यूज वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। Our grand total should be equal to 120. Now let us see, is it right or not? 30 plus 10, 40. Okay. 15 plus 35, 50. Very right. 25 plus 5, 30. ठीक है, अब इनको ऐसे ऐड करें वर्टिकली, तो ये कितना हो गया? 50 plus 30, 80. 80 plus 40, 120. इसका मतलब ये हमारा कॉलम इज परफेक्टली ऑल राइट। सेम वे हेयर, ये हमने पहले ही किया हुआ है, 70 plus 50, 7 और 5 12, 0 हो गया साथ में, 120, ठीक। So our means we can cross check our answer also side by side. Our grand total should be the same value as we have been given in the statement, vertically as well as horizontally. अच्छा, in case आपका ये 120 नहीं आता है, either from this side, vertical side, or from this side, that means here in the body of the table somewhere some mistake has been committed by you.
कुछ एरर हुई है, सम प्रॉब्लम इज देयर, दैट इज व्हाई टोटल इज नॉट कमिंग एक्यूरेट. ठीक है, तो लेट मी टेल यू अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स. अब ये क्या हो गया, दिस इज अवर टेबल नंबर, आपकी कॉपी में इट इज टेबल नंबर 1. देन वी हैव गिवन टाइटल ऑफ द टेबल, फाइन. देन वी हैव रिटन हेड नोट. देन नाउ दिस इज द बॉडी, एंटायर बॉडी. अब ये क्या है, स्ट्रीम. एज पर द कंपोनेंट्स दिस इज स्टब हेड, है ना, रोज का जो टाइटल होता है उसको स्टब हेड बोलते हैं. एंड ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, दीज आर स्टब्स. स्टब्स और रोज, ये रो है. ठीक है, अब रो शब्द नहीं लिखना है हमने, रो की जगह वी विल राइट जो भी हमें स्टेटमेंट में दिया है वो वाली वर्डिंग को यूज करना है. बट अदरवाइज एज ए पार्ट ऑफ द टेबल ये रोज कहलाती हैं. ठीक है, देन दिस इज द कैप्शन. कैप्शन मीन्स जो भी हमने वर्टिकली दिखाना है वो कैप्शन है. देन दीज आर सब कैप्शंस, उसके पार्ट कर दिए. ठीक, ये टोटल भी हमारा कैप्शन है क्योंकि वर्टिकली हम दिखा रहे हैं. इधर ऐसे ये वाला टोटल हमारी रो है, हॉरिजॉन्टली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी रो है हमारी. ठीक, और ये जो बीच में ये सारी वैल्यूज है ना 30, 15, 25 एंड दीज वैल्यू, दीज आर अवर सेल्स ऑफ द टेबल. सेल माने बॉडी ऑफ द टेबल. ठीक, नाउ यू सी, डू वी रिक्वायर एनी फुट नोट इन दिस क्वेश्चन? Is there anything special in this information? Nothing is special because कोई abbreviation नहीं है, कोई special item नहीं है. Very easily everything, with the help of everything we are able to calculate. So there is no need of footnote क्योंकि कुछ खास है ही नहीं है इसमें. Then again in this question, in this statement, we have not told about any source of information. ये नहीं बताया कि from which place this statement has been taken. ठीक है, तो इसका मतलब we should not write here source. खाली भी नहीं छोड़ना है, उसको लिखना ही नहीं है. वो तब लिखना है जब हमारे पास उससे रिलेटेड कोई चीज हो, जरूरत हो, तब उसको मेंशन करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अच्छा अब मैं आपको, आई एम ट्राइंग टू शो यू द सेकंड स्टेटमेंट एंड आई प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू सी द सोल्यूशन. ठीक है, आप सिर्फ स्टेटमेंट नोट करो, उसके बाद ट्राई टू डू योरसेल्फ, देन आई विल शो द सोल्यूशन. ठीक, अदरवाइज you will face difficulty in the paper if you look at the solutions only. I am trying to show. Sukhjeet ma'am, I think some students are in the waiting room. Hanji bete, you please note down. Statement is there were 245 students. मैं बोल देती हूँ बेटे, ऊपर वाली लाइन अगर नहीं दिख रही है तो let me cross it. There were 245 students in an educational institution. 245. Full stop. There were 80 boys in 11th and 12th class each. 80 boys in 11th and 12th class each. Full stop. 35 girls in 11th class. 35 girls in class 11 had science. And there was no 11th class girl. And there was no 11th class girl. No 11th class girl in the commerce stream. No 11th class girl in the commerce stream. हाँ जी मैम. अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ओके, मैं हाँ अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ. ठीक है, ठीक, मैं कर लेती हूँ, डोंट वरी. Yes, bete, let me complete the statement. There was no 11th class girl in commerce stream, full stop. There were 85 students in 12th commerce. There were 85 students in 12th commerce and 30 boys of 12th class had science. And 30 boys of 11th class, sorry, 12th class, 30 boys of 12th plus 2, 12th class had science, full stop. The total number of commerce students was 150. Total number of commerce students was 150, 150, full stop. Tabulate this information. Tabulate this information. ठीक है, अभी आपने पहले अपने रफ काम में फ्री हैंड से ही रफली अपना ड्रॉ करके देख लो.
ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, ठीक है। तो पहले आप रफ काम में ये नहीं लिखना टाइटल ये वो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। रफ काम में आप ये सिर्फ ये वाला रेक्टेंगल देखो। नाउ फर्स्ट थिंग इज कि वी हैव बीन टोल्ड अबाउट 2 क्लासेस 11th एंड 12th और वी हैव बीन टोल्ड अबाउट 2 स्ट्रीम्स, ठीक। अब क्लासेस में क्या होता है, बच्चे होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक। दैट मीन्स वी हैव टू मेक कंपैरिजन बेसिकली ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 11th क्लास एंड इन 12th क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये बॉयज एंड गर्ल्स जो है ये वर्टिकल फॉर्म में हमें लिखना चाहिए। तो पहले आप हेडिंग दे लो रफ काम में 11th क्लास बना लो, ठीक है। उसके बाद इधर चाहे गर्ल्स पहले लिख लो बॉयज लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। It's not necessary कि every time boys are to be written in the beginning, hardly matters. You may write here girls also, no problem. Boys, girls, total, ठीक है। टोटल ये किसका टोटल है, दिस इज द टोटल ऑफ जस्ट 11th क्लास ईयर, इसका टोटल है इस क्लास का। देन सेकंड फिर आप बनाएंगे, हमारा सेकंड मेन कैप्शन होगा 12th क्लास, फिर बॉयज गर्ल्स। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है, इफ यू हैव रिटन हियर बॉयज इन द बिगनिंग देन प्लीज राइट हियर बॉयज ऑल्सो इन द बिगनिंग, ठीक है। इफ यू आर राइटिंग हियर गर्ल्स इन द बिगनिंग मतलब सेम सिमेट्री शुड बी फॉलोड। इफ यू हैव रिटन गर्ल्स इन द बिगनिंग इन 11th क्लास देन हियर ऑल्सो इन द बिगनिंग यू शुड मेक द कॉलम ऑफ गर्ल्स। मतलब जो भी पहले लिखा है दोनों में सेम सेम ही चलना चाहिए। देन इट्स टोटल, this is the total of 12th class, ठीक है जी। then now this is grand total. Grand total means both the totals, addition of the total of 11th as well as 12th class, दोनों classes का main total, ठीक। उसके बाद now this side, now it is this side you will write stream। अब आपकी choice है whether you can write commerce in the beginning or science, that is up to you, not a big issue। You may write science or commerce, या you may write commerce and science, hardly matters। then total, ठीक है। so now you see we have written this total horizontally, this is the main total, and we have shown the this total vertically also, ठीक। now let us start। अब आपने प्लीज अपने आप करिए, पहले आप क्या करो कि the values which are given पहले आप उनको पुट कर लीजिए, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट में वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन फर्स्टली वी शुड फिल दोज कॉलम्स, दोज वैल्यूज शुड बी फिल्ड। सो लेट अस सी। नाउ फर्स्टली देयर आर 245 स्टूडेंट्स इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब 245 ये नहीं बताया कि 245 इन 11th है कि 12th है, तो इंस्टीट्यूशन में बोथ क्लासेज आर देयर, दैट मीन्स हियर वी हैव बीन दिस गिवन दिस ग्रैंड टोटल। तो दिस 245 वी शुड राइट हियर, ग्रैंड टोटल है पूरे स्कूल का या इंस्टीट्यूशन का 245, हियर वी शुड राइट 245, ठीक है। देन देयर वर 80 बॉयज इन क्लास 11 एंड 12 ईच, इसका मतलब क्लास 11 में आना है देन 12 में जाना है, और कितने बॉयज हैं दोनों क्लासेस में, क्लास 11 में बॉयज हैं 80 बॉयज, तो ये हो गया क्लास 11, ये बॉयज कॉलम, टोटल बॉयज कितने हैं, हाउ मेनी आर देयर 80, तो बॉयज के कॉलम के नीचे टोटल 80। सेम वे, ठीक है, पहले हम वी आर फिलिंग दैट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन। सेम वे 12th क्लास बॉयज कॉलम, हाउ मेनी टोटल बॉयज आर देयर, तो ये टोटल के सामने 80 बिकॉज दिस इज गिवन इन द लाइन स्टेटमेंट। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं, लेट अस सी व्हाट इज गिवन नेक्स्ट। 35 गर्ल्स इन 11th क्लास हैड साइंस, 35 गर्ल्स इन क्लास 11, पहले तो आ जाओ क्लास 11 पे, ये क्लास 11 गर्ल्स की बात हो रही है। लेट अस कम टू द कॉलम ऑफ गर्ल्स, ये गर्ल्स हो गया, और कितनी गर्ल्स हैं इन साइंस, टोटल नहीं है ये साइंस की गर्ल्स हैं, तो साइंस कहाँ लिखा है हमने, हियर वी हैव रिटन साइंस, ये हो गया साइंस, साइंस के सामने 35 गर्ल्स, हियर वी विल राइट 35, राइट। then what else is given, and there was no 11th class girl in commerce, no 11th class girl, ये class 11 girl, no one is there in commerce, ये होगी हमारी commerce side, no girl, ठीक है। तो that means zero quantity, जीरो नंबर हो गया ना, कोई गर्ल नहीं है, तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे। ऐसे भी जीरो लिख सकते हो, वैसे मैंने पहले बोला था ZERO, वैसे भी लिख सकते हो।
Himani has just entered. Other students have also entered quite late. Please beta be in time. First 4-5 minutes we can understand there may be some problem, but it's too late to join the meeting. So don't come for the sake of formality only, because it interrupts the flow of teaching also. Then what else is given? There were 85 students in 12th commerce. अब आ जाएं कॉमर्स. ये कॉमर्स, कॉमर्स के सामने 12th कॉमर्स में कितने बच्चे हैं टोटल? 85. तो ये 12th क्लास, ये सेकंड कॉलम कॉमर्स का, ये 85 बच्चे हो गए. ठीक है, कॉमर्स के सामने 12th क्लास के टोटल में, बिकॉज हमें टोटल दिया है 85 स्टूडेंट्स. Then what else is given? And 30 boys of 12th class had science. 30 boys of class 12, ये हो गई क्लास 12. बॉयज़ की बात हो रही है. 30 बॉयज़ हैं साइंस में, तो ये बॉयज़ कॉलम के नीचे साइंस के सामने, ये साइंस स्ट्रीम है इधर बिगनिंग में. ठीक है, साइंस स्ट्रीम के सामने बॉयज़ का नंबर वी हैव रिटन 30. ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स वाज 150. टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट. अब ये नहीं बताया कि कौन सी क्लास के. दैट मीन्स ये 150 जो है, दिस इज द टोटल ऑफ 11th एज वेल एज 12th क्लास. ठीक है ना, दोनों क्लासेस का टोटल है. तो कॉमर्स के सामने, ये कॉमर्स के सामने टोटल नंबर, दैट मीन्स वे हियर वी शुड राइट इन ग्रैंड टोटल, बिकॉज दोनों क्लासेस की बात हो रही है इकट्ठी. 150 स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिख दिया 150. टेबुलेट द इंफॉर्मेशन. ठीक, नाउ वट हैव आई सेड? पहले आपने you will write all those values which are given in the statement, write those values. After that, now please do the subtractions and additions, whatever is required. Now 245 है, 245 is given, 150 is given. ठीक है, तो if we subtract this 150 from 245, इसमें से माइनस कर दो 245 में से 150, तो you will automatically come to know how many children are left in science stream. 95. ठीक है ना, मतलब हर एक जगह यू विल ऑब्जर्व आउट ऑफ 3 थिंग्स 2 विल बी गिवन टू अस. वी हैव टू सी हियर एंड देयर व्हाट कैन वी डू. तो 245 में से इफ वी रिड्यूस 150 तो ऑटोमेटिकली वी गेट 95. देन व्हाट एल्स वाज गिवन? हमें क्या दिया हुआ है? 80 बॉयज दिए हुए हैं. 80 बॉयज में से और क्या दिया हुआ था? अब आप देखो जरा, बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग कि क्या दिया था हमें और क्या नहीं दिया था. आप अपनी कॉपी पे चेक करो. ये दिया हुआ है हमें 80, और ये टोटल हमारे पास कितना था? व्हाट एल्स वाज गिवन बेटे, आप चेक करो जरा, माइनस करो, बिकॉज हियर राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग साइड बाय साइड. देखो जरा टोटल किसका दिया हुआ है, प्लीज चेक. $85 स्टूडेंट्स इन 12th क्लास, 12th कॉमर्स. ये 85 इन 12th कॉमर्स. अब मुझे जैसे जैसे याद आ रहा है आई एम टेलिंग 85 इन 12th क्लास. ठीक है, तो इसका मतलब ये 85 है अगर 12th क्लास के बच्चे टोटल, तो ये हमारे पास ऑलरेडी है 150 ग्रैंड टोटल. तो 150 में से इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस 85, 12th क्लास के बच्चों को निकाल दें, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? वी विल बी लेफ्ट विद दिस 65. ठीक है, आप अपने आप चेक करो कहाँ से क्या माइनस करें, हमें क्या चीज़ मिल जाए. हमें ये टोटल दिया हुआ है कॉमर्स का 150 टोटल ग्रैंड टोटल. इसमें से इफ वी रिड्यूस दिस 85 स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास बिकॉज दे वर ऑलरेडी गिवन, तो माइनस कर दिया, तो रेस्ट इज लेफ्ट 65. ठीक है, फिर हमें दूसरी बात और क्या दिया हुआ था? 80 बॉयज़ दिए हुए हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है 35 गर्ल्स इन 11th क्लास हैड साइंस. 35 गर्ल्स इन 11th क्लास हैड साइंस. ठीक, ये हमें दिया हुआ है. और दूसरा में ये भी बताया हुआ है नो गर्ल ऑफ 11th क्लास हैज़ टेकन कॉमर्स. ये हो गया 0, तो ये हो गया हमारा 35 प्लस 0 इक्वल टू 35. एक तो ये हो गया. देन अभी अभी हमने क्या पता चला, हमें ये 65 निकाला था, तो 65 में से 11th क्लास के टोटल में से अगर हम माइनस कर दें 0, तो दैट मीन्स वी विल बी लेफ्ट, हाउ मेनी बॉयज विल बी देयर? 65. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना. 65 में से 0 निकाल दिया, तो इसका मतलब बॉयज ये वाले कॉलम में बच गए हमारे पास 65. ठीक है, फिर
ये टोटल है 115 में से ये 65 को माइनस कर दो तो हियर वी विल बी लेफ्ट विद 50. ये वाला 115 में से, ठीक है, ये 65 माइनस कर दें जो हमने पहले टोटल निकाल के ग्रैंड टोटल में से निकाला हुआ था, तो देन वी विल बी लेफ्ट विद 50. ठीक है, अब 50 है टोटल, 50 में से 35 हैं गर्ल्स, तो माइनस कर दे तो बॉयज़ कितने बचे, 50 माइनस 35, लेफ्ट बॉयज़ विल बी 15. मतलब कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले ये करना है या वो करना है, ऐसा कुछ नहीं. वेयर एवर यू कैन फाइंड द एडिशन सब्ट्रैक्शन, वेयर एवर यू कैन फाइंड द डिफरेंस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट. कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं कि पहले एक कॉलम को कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ नहीं है. अल्टीमेटली यू हैव टू कंप्लीट ऑल द वैल्यूज. देन लेट अस कम टू दिस साइड. 85 स्टूडेंट्स इन +2 कॉमर्स, ये हो गया +2 क्लास. ये कॉमर्स के सामने 85 लिखा था हमने, और ये हमने पहले निकाला हुआ है 130. तो 130 में से 85 माइनस करें, वी विल बी गेटिंग नंबर ऑफ +2 क्लास के टोटल 45 बच जाएंगे. I may be telling in different way, you may be doing in some other manner, hardly matters. Ultimately you will get all these values. ठीक है, उसके बाद देखो और क्या हो सकता है हमारा, और क्या दिया हुआ है, ये 30 बॉयज़ इन 12th क्लास एट साइंस, ये लिखा था 30 बॉयज़ इन 12th क्लास एट साइंस. तो ये 45 में से 30 बॉयज़ को माइनस कर दें तो वी विल गेट 15 गर्ल्स. या ऐसे करना चाहो आप, ये टोटल ग्रैंड टोटल था 95. 95 में से इफ़ यू हैव रिड्यूस्ड दिस टोटल ऑफ 11th क्लास, तो आपके पास ये +2 का टोटल बचा 45. ठीक है, फिर इस 45 में से यू हैव रिड्यूस 30 बॉयज़, तो यू आर लेफ्ट विद 15 गर्ल्स. एम आई क्लियर बेटे, समझ आ रहा है सबको? लेट मी सी ऑल आर डूइंग और नॉट. Yes, I hope all are busy. Very right. और चेक कर लो कहाँ से anything is left here and there, subtract that, add that. मनदीप डन बेटे, मनदीप कौर कर लिया बेटे, वेरी राइट. अश्विंदर हो गया बच्चे, डन, वेरी गुड, वेरी गुड. Others are also requested to calculate quickly. हर्षिता गांधी, have you done बेटे? हर्षिता गांधी कर लिया बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड. So others are still tackling with the situation. No problem. So I will not start next question because time is also going to be over. I won't be able to even complete the statement. No problem. We will do many more questions related to this tabulation. So today, with the help of your book, you can start with the solved as well as unsolved questions. ठीक है, सेम वे इसी तरीके से हमने बनाना है, और कुछ खास नहीं है, बस ऐसे प्रैक्टिस ही करनी है. सो आप अपनी बुक में सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हो या अनसॉल्व, जहाँ मुझसे मर्जी आप स्टार्ट कर लो एंड डू दैट प्रैक्टिस. ठीक है, फर्स्टली ओनली रूल विच इज़ टू बी केप्ट इन माइंड कि फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ ए रफ स्केच इन योर रफ वर्क. पहले उस पर मोटा मोटा सा करके देख लो क्या आपकी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि उसको देख के हमें वी गेट हेल्प कि हाउ मेनी कॉलम्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी रोज आर रिक्वायर्ड, हमें पता चल जाता है. तो ये सारा जो दिस कॉलम हैज़ बीन प्रेजेंटेड, ठीक है, ऊपर आप लिखोगे टेबल नंबर 2 बिकॉज हियर वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू दिस क्लास वर्क. ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 2. तो वी विल फॉलो दिस सीक्वेंस इन द क्लास. रेस्ट वट एवर क्वेश्चन यू डू एट होम, वो आप अपना सीक्वेंस अलग से चलाओ. ठीक, उसको नंबर 1 कर लो, 2 कर लो, जो मर्जी. मैं इसके फॉलो करूंगी. ये हमारा क्वेश्चन नंबर टेबल नंबर 2 है. देन वी हैव गिवन द हेडिंग. देयर इज नो नीड टू राइट दिस टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. सीधा ही आप लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 and 12. There is no use of this word table showing. ठीक है, short सा heading is should be given distribution of students of class 11 and 12. This will be our main title.
Then below that, in the head note, we will write on the basis of sex and stream. This can be written in head note. ठीक है जी. उसके बाद अब now in this question, no footnote is required because all values are given clear cut. Nothing special is there, so no footnote is required. Then again here from this information we have not been told कि from which source it has been taken. बताया ही नहीं हुआ है कौन से न्यूज़पेपर में से है या कहाँ से है. So nothing is to be written in the here in the source also. No need. क्योंकि अगर दिया होता तो देन वी शुड राइट. अब यहाँ पर नहीं है, एज यू कैन सी इट इज टोटली ब्लैंक, सो नो नीड टू इवन मेंशन द हेडिंग्स इवन. उसको कुछ नहीं लिखना हमने. ठीक है जी. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सेकंड क्वेश्चन. So again, I request all the students to try to be in time because many students have joined very late. That just disrupts the flow. Because Sukhjeet ma'am today again she is facing this network problem. Sometimes me can also face. So then it becomes a big problem to enter the students. Okay? So please be in time and enjoy the work. Okay? With this, I want to take leave from all of you as time is over.